پاکستان آرمی ایمرجنسی رسپونڈرز کے طور پر وبا کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھرپور معاونت کرے گی۔ آج صبح 6 بجے سے ملک کے طول و عرض میں ہر ضلع کی سطح پر آرمی ٹروپس سول اداروں کی مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ آرٹیکل 245 کے تحت ملک بھر میں ہر ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کی سطح پر ایک ٹیم تعینات کر دی گئی ہے۔ تمام ڈویژنز کی سطح پر اس ٹیم کی سربراہی بریگیڈیئر رینک کے آفیسرز کریں گے۔ ہر ضلع کی سطح پر لیفٹنٹ کرنل کی سربراہی میں آرمی ٹروپس سول انتظامیہ کی مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان آرمی ٹروپس کی تعیناتی کا بنیادی مقصد سول حکومت اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی معاونت ہے۔ عزیز دوستوں، السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ آفٹرنون۔ یہ ڈی جی ISPR صاحب کیا فرماتے ہیں، سنا آپ نے؟ پاکستان کے ہر ضلع میں فوج پہنچ گئی ہے۔ مطلب SOPs کا بہانہ ہے۔ SOPs کو کس طرح فالو کرا رہے ہیں کہ ابھی یوم علی تھا 2 دن پہلے، یوم علی پہ شیعوں کا یہ حالت دیکھیں، کہاں ہے SOPs؟ شیعہ لوگوں نے، حکومت نے کہا کہ یوم علی کے جلوس نہیں نکلیں گے، شیعوں نے کہا چل بے، پاکستان میں کون قانون کو مانتا ہے اور حکومت کو مانتا ہے، سارے جلوس نکالے اور بھر بھر کے پبلک تھی۔ مطلب آپ پبلک کا اندازہ دیکھیں، کہاں ہے آرمی ہر ضلع میں موجود ہے تو کون سے SOPs کی پابندی کرا رہے ہیں، کس قسم کا، مطلب مجھے تو کہیں سے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان میں SOPs کی کس طرح فالو اپ ہوگی۔ پورے پاکستان میں یوم علی پہ جلوس نکلے ہیں، صرف گدھے ہیں جو SOPs کو فالو کر رہے ہیں، باقی عام آدمی کو SOPs فالو نہیں کرا رہے ہیں۔ ہر ضلع میں آرمی موجود ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، ہاسپٹل سے اپنے گھر پہنچیں، گھر کے دروازے پہ ان کو لوٹ لیا گیا۔ ایسی کئی ویڈیو ہیں، ایک ہیرا مانی ہماری ٹی وی ایکٹریس ہے، اس کو اس کے گھر کے آگے پرسوں لوٹ لیا۔ اس طرح کتنے روز کی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، آرمی کی چھتر چھایا میں سب ہو رہا ہے۔ پاکستان میں جب میئر تھا تو میرے انڈر میں 7 پولیس اسٹیشن آتے تھے، 7۔ تو وہ آتے تھے SHO جو ہوتے تھے وہ میرے پاس اکثر آتے تھے کسی نہ کسی سلسلے میں۔ تو ایک دن میں جو میرے علاقے کا DIG تھا، جس کو TPO کہتے تھے، ٹاؤن پولیس آفیسر، وہ 7 پولیس اسٹیشن کے اوپر وہ TPO تھا۔ وہ TPO آیا تھا تو ایسے ہی غیر رسمی باتیں ہو رہی تھیں، چائے اور بسکٹ وغیرہ کے ساتھ۔ تو اس کے ساتھ 1-2 اور بھی پولیس والے تھے، ہائی آفیشلز۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ آپ جب آپ کو کوئی ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ فلاں کیس ہے تو آپ فوراً اس کو سولو کر لیتے ہو، ویسے آپ کرائم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ سر بدقسمتی سے ہمارے پولیس میں ایک مسئلہ ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی جرم بغیر پولیس کی مدد کے نہیں ہو سکتا۔ ہماری پولیس انوالوڈ ہوتی ہے، کوئی ایسی واردات ہو جائے جس میں پولیس انوالوڈ نہ ہو تو پولیس فوراً ان کو پکڑتی ہے کہ کون ایسا آدمی ہے جو واردات کر کے چلا گیا، ہمارا حصہ کہاں ہے۔ اس سلسلے میں ایک لطیفہ ہے، لطیفہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک واقعہ ہے کچھ سالوں پہلے کا، جس کو کئی بار بتایا گیا، لیکن یہ لطیفے کی صورت میں بتایا جاتا ہے، لیکن یہ جینین واقعہ ہے کہ ایک آدمی سعودی عرب سے واپس آیا، چھٹیوں پہ جیسے لوگ آتے ہیں، تو وہ اپنے بچے کے لیے ایک نقلی بندوق جو ہوتی ہے نا، وہ بندوق لایا تھا۔ تو جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو اس کے گھر پہ ڈاکو آ گئے تو اس آدمی نے وہ بچے کی جو نقلی بندوق تھی وہ نکال کے ان ڈاکوؤں کے سامنے رکھی، ڈاکو بھاگ گئے ڈر کے، وہ سمجھے اصلی بندوق ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو پولیس آئی، وہ پولیس نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے گھر میں بندوق ہے، تلاشیاں یہ وہ، بولا کہاں ہے وہ بندوق؟ اس نے کہا کوئی بندوق نہیں ہے، یہ نقلی بندوق ہے جو میں بچے کے لیے سعودی عرب سے ابھی لے کے آیا ہوں۔ پولیس نے کہا اچھا ہو ٹھیک ہے، چلی گئی پولیس۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ڈاکو پھر آ گئے، بولا ہمیں نقلی بندوق سے ڈراتا ہے، وہ لوٹ مار کر کے چلے گئے۔ یہ حقیقی واقعہ ہے، کچھ سالوں پہلے ہوا تھا کراچی میں۔ تو یہ جب تک پولیس انوالو نہ ہو پاکستان میں کوئی جرم نہیں ہو سکتا۔ حالات خراب ہیں پاکستان کے۔ یورپین پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کیا
जीएसपी प्लस का जो पाकिस्तान को स्टेटस मिला हुआ था वो उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाने का कहा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जीएसपी प्लस पाकिस्तान को स्टेटस मिलने के बाद बहुत बढ़ गई थी यूरोप में। ये हटने से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत डाउन हो जाएंगी और वैसे ही जो पाकिस्तान का सत्यानाश हुआ इकोनॉमी का, वो और सेवा सत्यानाश होने वाला है इस जीएसपी प्लस पे पाबंदी लगने पे। आपको मैं आगे बढ़ने से पहले एक खुशखबरी सुना दूं। मौलवी तारिक जमील, ढकोसला मौलवी, जिसकी मैं कई आपको तारीफें बता चुका हूं, इसने जो अभी अपना MTJ ब्रांड लॉन्च किया है, इसकी दुकान में अबाया जो बुर्का होता है 29,000 रुपए का खाली था। 29,000 रुपए का बुर्का इसने सेल पर लगा दिया है, रमजान की वजह से 23,000 में कर दिया है। और ये हमें हदीसें सुनाता है कि एक आदमी कुरान पढ़ रहा था और कपड़े का व्यापारी था, तो इसके पास एक आदमी आया कि तुम कुरान पढ़ रहे हो इसलिए मैं तुमसे लेता हूं, तो उसने ज्यादा कीमत पे बेचा। तो कहता है कि मेरे पास वो आदमी आके बढ़ाई खा रहा था कि मैंने ज्यादा कीमत पे बेचा, तो मैंने उसको कहा कि शर्म आनी चाहिए कि तुम कुरान पढ़ते थे, तुम्हें देख के वो आदमी आया तो तुमको ईमानदारी का, ये इनकी ईमानदारी। ये बुर्का आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या हीरे टंगे हुए हैं, 29,000 का। अब जरा इनकी वो सुन लें 1 मिनट की वीडियो, फिर मैं आपको एक बुद्धू आया, कहने लगा या रसूलल्लाह हल फिल जन्नत मिन इनब, जन्नत में अंगूर होंगे? आपने कहा हाँ होंगे। तो वो कहने लगा तो एक गुच्छे का कितना होगा, कितना बड़ा होगा, एक गुच्छा कितना बड़ा होगा? तो अब आप दिल थाम के सुनो। आपने फरमाया कौवा सुबह देखो कितना तेज उड़ता है, तेज रफ्तार परिंदा है कौवा। तो आपने फरमाया एक कौवा 1 महीना ऐसे सीधा उड़ता रहे, ना इधर जाए ना इधर जाए, ना सुस्त पड़े ना बैठे, नहीं चलते चलते इधर नहीं गया इधर नहीं गया, रफ्तार सुस्त नहीं की, बैठ नहीं गया, 1 महीना पूरा उड़ता रहेगा ना तो अंगूर का एक गुच्छा पूरा होगा। तो खजूरों का गुच्छा कितना बड़ा होगा? टोटल जन्नत की नक्शाकशी में लगे रहते हैं। हर आदमी को यूथिया बनाया हुआ है कि बस जन्नत के ख्वाब देखते रहो, जन्नत के अंदर बैठे रहो, अंगूर के खोशे। अब कोई इनसे पूछे कि ये जो इतना बड़ा अंगूर का खोशा होगा, एक कौवा कितना तेजी से उड़ता है पता है? अगर फुल ताकत में उड़ता है तो 1 महीने तक उड़ता रहेगा। अंगूर का वो खोशा मुंह में जाएगा कैसे आदमी के, इतना बड़ा। ये जिस किस्म की अल्लाह गाना गा रहा होगा, ये भी इसकी वीडियो मौजूद है, इस पे कोई फतवा नहीं आता। अल्लाह शराब पिला रहा होगा, हूरें शराब पिला रही होंगी। हम जब पेरिस में रहते थे, फ्रांस में रहते थे, पेरिस में तो नहीं, मैं फ्रांस में आमिया में रहता था, आमिया नामी शहर में, तो पब्लिसिटियां हमारे दरवाजे में आती थी रोज, मुख्तलिफ पब्लिसिटियां। उसमें कैबरे की, पेरिस के कैबरे की पब्लिसिटियां आती थी। उसमें यही जो तारिक जमील बता रहा है जन्नत का नक्शा, वो कैबरे का वही नक्शा होता था। क्या आप आएंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक शैम्पाइन पेश की जाएगी हमारे कैबरे में, बगैर कपड़ों के लड़की, खूबसूरत लड़की, उसकी भी वो इसी तरह नक्शाकशी करते थे जिस तरह मौलवी तारिक जमील जन्नत की हूरों की करता है, कि इस तरह आपको वो शराब पेश करेगी, शैम्पाइन पेश करेगी और आप फिर वहां पे पूरी रात एंजॉय करेंगे। एक से एक खूबसूरत लड़की बगैर कपड़ों को वहां पे होगी, आप उनकी कंपनी में पूरी रात गुजार सकते हैं, कैसीनोज होंगे, खाने पीने की बेहतरीन चीजें होंगी। ये तौहीन मजहब नहीं है, तौहीन रिसालत से ऊपर तौहीन अल्लाह भी होती है कोई चीज, कि अल्लाह से सुप्रीम कोई नहीं है ना इस्लाम में, नबी से ऊपर अल्लाह है। तो अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं। अल्लाह गाना गा रहा होगा, आप 1 महीने तक सुनते रहेंगे, हिलेंगे नहीं, आपकी आंखें भी नहीं झपकेंगी। अल्लाह शराब पेश कर रहा होगा,
तो इनको तौहीन रिसालत नजर नहीं आती। इस मौलवी को कोई फतवा दे के लटका नहीं देता? क्या ये गलत नहीं है? मतलब घटिया तरीन हरकत ये कर रहा है और हर आदमी को जन्नत का नक्शा दिखा रहा है। खुद उसने अपनी जन्नत बनाई हुई है, बंगलों में रह रहा है, 6-6 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, 24 घंटे खुद्दाम इसके हाथ पांव दबाते हैं। ये भाई साहब बैठ के मोबाइल पे वीडियो देख रहा होता है। हराम है ये वीडियो देखना, हराम है तस्वीर इंडिया मुसलमानों में। लेकिन कोई इनको नहीं पूछेगा। थोड़ा मैं इमरान खान की तरफ आना चाहूंगा। इमरान खान का तो सही सत्यानाश हुआ। यूरोपियन पार्लियामेंट ने करारदाद पेश की, इसके बाद इटालियन पार्लियामेंट ने भी रेजोल्यूशन पास किया है पाकिस्तान के खिलाफ, और इंग्लैंड ने पाबंदी लगा दी कि कोई चैरिटी यहां से रमजान में और इधर उधर नहीं जाएगी। अब रमजान की चैरिटी, ये मैं स्पेशली मुसलमानों को बता रहा हूं, रमजान में ज़कात दी जाती है। हर आदमी के ऊपर फर्ज है कि वो अपनी जायदाद, अपने सोने के ऊपर, अपनी जितने एसेट्स हैं उसके 2.5% ज़कात देगा, चैरिटी देगा। ज़कात वो रमजान में निकाली जाती है हर साल। तो आप यहां पे इंग्लैंड में देखेंगे ना, तो जितने पाकिस्तानी चैनल हैं, ARY, जियो, छोटे बड़े, दुनिया, वक्त, समा, उन सब पे टेलीथॉन चलते हैं, और कई कई घंटे के टेलीथॉन होते हैं। उसमें 2 मौलवी बिठाए हुए होते हैं, एक आदमी होता है। हरकतुल मुजाहिदीन के लिए आप चंदा दें, हम कश्मीर में मजलूम कश्मीरी जो कि भारतीय मजालिम से तंग आया हुआ है, कर्फ्यू बता रहे हैं, कश्मीर में कर्फ्यू है। ये आप अभी जाके देख लें, आप किसी भी टेलीथॉन को उठा लेके देख लें, वो कह रहे हैं कि भारत में कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है। झूठ। सबसे पहले तो मौलवी टीवी पे बैठ के बोल रहा है। आप मुझे कोई इंडियन मुसलमान ही बता देगा क्या कश्मीर में कर्फ्यू है? कश्मीर में मुस्लिम फौजी जो हैं वो कश्मीरी मुसलमान औरतों की रोज अस्मत दरी कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं। अगर एक भी रेप हो रहा होता ना तो राना अयूब चूड़ियां तोड़ने आ जाती। तो मेरा एक दोस्त है, यहां पे जर्नलिस्ट है पाकिस्तानी, वो एक रमजान में टेलीथॉन पे रोज बैठा होता है, कई कई घंटे। तो मैंने इसको पूछा, मैंने कहा यार इरफान साहब, आप टेलीथॉन में बड़ा नेक काम कर रहे हैं। बोला आरिफ साहब मुझे 500 पाउंड मिलता है एक दिन का, तो मैं करता हूं। कहता है यार मिनिमम 500 होता है, वरना मैं परसेंटेज भी कुछ चैनल के ऊपर वो करता हूं कि जितना आप कमाएंगे। अब आप खुद सोचे कि ARY, जियो 1 मिनट का एड चलाने का कितना पैसा लेते हैं, तो सोचें 2-2 घंटे के ये टेलीथॉन के कितने पैसे लेते होंगे। अब आम मुसलमान से मैं पूछता हूं कि आप जो ज़कात दे रहे हैं, ज़कात की स्पिरिट ये है कि ये गरीब, भूखे, नादार, मजबूर, मुफलिस लोगों की मदद के लिए दी जाती है। आप जो ज़कात देते हैं उसमें से कितना बड़ा हिस्सा तो चैनल को चला जाता है पब्लिसिटी के लिए, वो टाइम जो एयर टाइम लेते हैं चैनल वालों से, उसके लिए चला जाता है। फिर जो उस पर जो बिठाया हुआ होता है सेलिब्रिटी, उसका 500 पाउंड अलग होता है पर डे। तो आपका आधा पैसा तो इन चीजों में चला जाता है, बाकी आधा उन मौलवियों के जेब में जाता है। ये जो चैरिटियों के नाम पे भी होता है ना कि हम फलां इलाके में कुएं खुदवा रहे हैं, गरीब आदमियों के लिए जहां पे पानी नहीं है वहां पे कुएं खुदवा रहे हैं, सोमालिया में और इधर इधर। ये फर्स्ट क्लास हवाई जहाज में बैठ के जाते हैं आपके पैसे पे, आपकी ज़कात, आपके चैरिटी के दिए हुए पैसे पे। वो मौलवी अपनी पूरी फैमिली को लेके जाता है फर्स्ट क्लास में बैठ के, वहां पे 5 स्टार होटल में ठहरता है इसी खर्चे पे, और 40 कुएं जितना खर्चा करके जाता है और 4 कुएं खुदवा के आ जाता है, वो भी फोटो सेशन करके आ जाते हैं। तो इंग्लैंड ने पाबंदी लगा दी कि पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि यूके पुट्स पाकिस्तान ऑन हाई रिस्क कंट्रीज ओवर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग। क्योंकि आफ्टर ऑल आपका ये जो ज़कात का दिया हुआ पैसा है
वो खर्च होता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के ऊपर। और टेररिज्म जो है ना, उसका शिकार मुसलमान ज़्यादा है, चाहे वो अफ़गानिस्तान में है, चाहे वो इराक में है, सीरिया में है, यमन में है, लीबिया में है, मुसलमान ज़्यादा है। तो आपका दिया हुआ जो चैरिटी है ना, वो ज़ाया हो रहा है। इमरान खान के एक वजीर हैं, इनके साथ क्या हुआ, ये इमरान खान का कोई वजीर इस वक्त सामने नहीं आ रहा, पब्लिक में नहीं आ रहा। उनको पता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको एक एमपीए की पिटाई दिखाई थी, इसको जो चमाटें पड़ी हैं, ये आप देखें कितना करारा चमाट पड़ा है। इमरान खान के एमएनए, एमपीए, वजीर, सेनेटर अब पब्लिक में नहीं आते। इनको पता है कि जो हमारा हाल होना है, ये शेख रशीद टाइप के चूंकि वजीर दाखिला है, तो आता है तो चारों तरफ पूरी सिक्योरिटी होती है, और इवन जर्नलिस्ट तक भी वो बुलाए जाते हैं जिस पर पूरा भरोसा है कि वो बूट चमकाता है हाथ से नहीं, चाट के, और किसी को ये करीब नहीं फटकने देते। इमरान खान का हशर नशर हुआ है। कोविड का ये हाल है कि खुद पाकिस्तानी अखबार लिखता है कि पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग सोमालिया, अफगानिस्तान, यमन, ये वो गरीब से गरीब मुल्क के बावजूद सबसे कम कोविड वैक्सीनेशन पाकिस्तान में हुई है, सबसे कम। अभी तक 1% पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेशन नहीं लगी, 1% भी। और ये जिस इसराइल को गालियां देते हैं, इसराइल ने दुनिया में सबसे ज्यादा तकरीबन 100% पॉपुलेशन वैक्सीनेट कर दी है, और ये बड़े मुसलमान बने फिरते हैं। ये 1% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन नहीं दे सके अभी तक। और मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से क्या क्या बताऊं कि अफगान बॉर्डर पे पाकिस्तान की फौज पे हमला होता है, 4 मर जाते हैं, 2 दर्जन के करीब, अखबार में तो 4 मरने की और 6 जख्मी की खबर आई है, 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी हैं और 4 से भी ज्यादा मरे हैं। ये रोज की बुनियाद पे बलोचिस्तान, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, यानी पख्तून एरियाज में, सिंध में, इनका हाल खराब है। इसीलिए इन्होंने एक एक जिले में अपनी फौज बुलाई हुई है, ताकि ये अपनी इस जंग में कुछ कंट्रोल कर सकें, लेकिन कंट्रोल में है नहीं। पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़राब है, इकोनॉमिकली तबाहशुदा है। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा और धक्का दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। थोड़ी ज़रूरत है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करने की कि अब पाकिस्तान के बगैर दुनिया बेहतर होगी। यह है सूरत हाल। मुझे कल ट्विटर ने 12 घंटे के लिए बैन कर दिया था। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आरिफ भाई, आप ट्विटर पे ब्लू टिक क्यों अप्लाई नहीं करते। वो कंगना के पास ब्लू टिक भी थी और 4 मिलियन फॉलोअर थे इसके। मेरे तो लाख भी नहीं है, 70,000 हैं। मेरा भी ट्विटर का अजीब हिसाब है। रोज मुझे आता है कि आज 20 लोगों ने फॉलो किया, आज 15 लोगों ने फॉलो किया, ये क्या। लेकिन मैं पिछले 8-10 महीने से 70 और 74,000 के दरमियान ही रहता हूं। अभी मुझे जो बैन किया था तो मेरे 74,000 फॉलोअर थे, बैन हटाए तो 71,000 फॉलोअर हो गए, 3,000 कम हो गए। तो मुझे इसकी समझ आती नहीं है। तो बहरहाल मेरे तो छोटे से फॉलोअर हैं, मुझे किसी दिन भी ट्विटर बैन कर देगा, कभी यूट्यूब भी बैन कर सकता है। मेरी वेबसाइट पे वर्किंग हो रही है, कुछ लोग मेरी मदद कर रहे हैं और उनको मैंने रिक्वेस्ट की है तो वो मदद कर रहे हैं। तो वेबसाइट को मैं डेवलप कर रहा हूँ इससे पहले कि मैं किक आउट हो जाऊँ यूट्यूब से या कहीं और से, ताकि आप लोगों से मेरा राब्ता जुड़ा रहे, आप लोगों से मेरे मामला जुड़े रहें। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वो हैं, टफ है हमारी सूरत हाल, कोशिश कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। आप लोगों की इंडिया में सूरत हाल बहुत ही ख़राब है, इसलिए आप लोगों के लिए मेरी दुआएं हैं।
मेरी कोशिश है कि मैं जो कंट्रीब्यूट कर सकूं वो मैं कर रहा हूं अपनी कैपेसिटी में। बाकी ये है कि आप लोगों की मदद का शुक्रिया, आप लोग मेरे साथ बहुत ही हमदर्द हैं, मेरे साथ बहुत ही जनरस हैं, जो मुझे इतने मैसेजेस करते हैं, मैं सबका जवाब नहीं दे सकता। एक बात मैं यहाँ पे और भी कहना चाहूँगा कि मेरे पास इस वक्त भी कोई 12-13 लोगों को व्हाट्सएप का पता नहीं नंबर मिल जाता है, क्योंकि मुझे कुछ लोग ग्रुप में डाल देते हैं व्हाट्सएप के, और फिर वो सबके पास नंबर पहुंच जाता है। तो जिसको देखो वो कह रहा है मुझे फ़ोन करें, मुझे फ़ोन करें, मुझे आपसे बात करनी है, और आधा घंटा दे दें। भाई साहब कुछ खुदा का खौफ करें भाई साहब। मैं अगर हर आदमी से फ़ोन पे बातें करने लगूंगा तो मैं कैसे काम चलेगा। यहाँ पे हम जॉब होती है, फैमिली मैटर्स होते हैं, बच्चे, मेरा बेटा बीमार है, उसकी आंख में इन्फेक्शन हो गया है, पिछले 4 दिन से वो कॉलेज नहीं जा सका। कई मसले होते हैं यार यहाँ पे। अब उसमें फिर वीडियो बनानी होती है, फिर इंटरव्यू देने होते हैं। कल मैं पुष्पेंद्रा जी के प्रोग्राम में था, परसों में कालिदासी जी के प्रोग्राम में था। अब ये सब चीज़ें करने के बाद मेरे लिए मुमकिन नहीं होता कि मैं हर आदमी से आधा आधा घंटा या 15-15 मिनट फ़ोन पे बात करूं। तो प्लीज़ ज़रा मेरी भी मजबूरियों को समझें। मेरे को ये नहीं है कि मैं कोई मगरूर हो गया हूँ या मैं भाव खा रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है भाई। मैं अगर हर आदमी से अगर फ़ोन पे गप्पे मारना शुरू कर दूंगा तो कैसे काम चलेगा। तो प्लीज़ मेरी मजबूरियों को समझें, और थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग। आपकी मोहब्बत मेरे लिए अनमोल है और मैं इसको चेरिश करता हूँ। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।